discuss class 11 subject English poem number 1, A Photograph, and the poetess of this poem is Shirley Temple. Okay, so she is the poetess of 20th century, and we will discuss here something that is very valuable for the life, and there are so many articles and the objects we personally use. Every person use, like, but here we are defining about a photograph, because photograph is the symbol of our past life. Definitely when we take photograph, when we shoot photos, and in the future when we are watching them, we always feel and perceive that these were the very interesting and as well as the glorious time of our life when we took and when we shoot that photos. So here once again we are finding that kind of theme which is regarding or which is describing the very happiest moment of our life of Shirley Tilson's mother's past life. Okay, so now I have also written here. So in the part of the introduction we find this poem shows how time takes its toll. Toll कहते हैं टैक्स लेने को, toll on life कि कैसे जिंदगी से टैक्स लेती है, जिंदगी टैक्स लेती है किस तरीके से, and we try to capture moments from life. हमने जिंदगी से कुछ पल चुराए हैं which remain as pictures, जो पिक्चर के रूप में कैद हो गए हैं. So in our mind some faint, some clear, हमारे दिमाग में भी पिछली पुरानी जो बातें होती हैं वो कुछ धुंधली होती हैं, कुछ क्लियर होती हैं. What is finally left is silence and death. लेकिन अंत में बचता क्या है फोटोग्राफ के बाद भी? केवल क्या बचता है? साइलेंस और डेथ. So for the next generation, किसके लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए, to reflect upon कि वो उन्हें देखे, उन्हें समझे और अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करें. Now we come to the poem. Okay, a photograph. तो यहाँ पर फोटोग्राफ का क्या मीनिंग है पहले ये समझ लीजिए कि what does the word cardboard suggest here or the photograph suggest here. Photograph is the experience of past or the enjoyment of past. Now we come. So when in the very first line, the cardboard shows me how it was when the two cousins went peddling. ये जो poem है ये 3 phase में divided है. This poem has been divided into 3 phase. The first phase is the childhood or the teenager, and the second phase of the maturity or the adulthood, and the third phase of life, that is death. Okay, so now the very first phase we are discussing here. So the cardboard shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. तो यहाँ पर कार्डबोर्ड किसके लिए आया है? The cardboard word the poet has used और ये reflects to the mounted photograph. ठीक है, यानी कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटोग्राफ पेस्टेड है. देखिए पुराने टाइम में क्या होता था कि अब थोड़ा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वी हैव रिफाइंड पीस ऑफ पेपर, सो दैट्स व्हाई we find only one sheet or the piece of paper where we find the photos. But here earlier, because I am talking before 50 years, तो पहले क्या होता था, एक कार्डबोर्ड इस तरीके से होता था. उस कार्डबोर्ड के ऊपर पुराने टाइम में आप अपनी फैमिलीज में भी देख सकते हैं बिफोर 40 और 50 इयर्स के फोटोग्राफ में यहाँ पर फोटो को इस तरीके से पेस्टेड कर दिया जाता था. So this was the photo and this was the cardboard. So वो क्या कह रहे हैं कि the cardboard shows me how it was. Cardboard ने मुझे बताया ये कैसा था. यहाँ cardboard here refers to the mounted photograph of the mother and her cousin, and the enlarged photograph was fixed on the cardboard for the purpose of framing. यानी ये जो cardboard जो है वो framing के पर्पस से दिया गया और उस पर कौन क्या चीज पेस्टेड है? फोटो. तो फोटो पेस्टेड है और उस फोटो में किसकी फोटो है, यानी उस फोटो पर कौन कौन सी पिक्चर है? वो है टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग. दो लड़कियां अपनी कजिन के साथ, यानी कजिन कौन है ये हम देखेंगे यहाँ पर. पेडलिंग कहते हैं स्प्लैशिंग करने के लिए, यानी सी बीच पर एंजॉय करने के लिए, वाटर में एंजॉय करने के लिए वो दोनों लड़कियां गई थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, और वो दोनों लड़कियों ने मेरी माँ का हाथ थामा हुआ था. अब आप समझ सकते हैं मेरी माँ तो अलग हो गई, यहाँ पर कितने पर्सन हो गए? एक तो हो गई मदर किसकी मदर? दैट इज द मदर ऑफ शिर्ले टल्सन, और दो हो गई इनकी कजिन्स. ठीक है, दो हो गई इनकी कजिन्स. तो हियर आर द वन इज दिस एंड टू आर दीज आर द 3 कैरेक्टर जो कहां गए? पैडलिंग के लिए गए, स्प्लैशिंग के लिए गए. एंड वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, और दोनों ने ही मेरी मदर का हाथ पकड़ रखा था. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों अदर साइड से खड़ी हो, तो इसका मतलब मिडिल में कौन हो गई? मिडिल में हो गई हमारी जो हमारी पोएटेस है उनकी मदर, और इधर साइड में कौन हो गई? उनकी कजन हो गई. तो उन्होंने क्या किया हुआ है? ऐसे हैंड को पकड़ा हुआ है उनके को,
और हैंड को पकड़कर वो वहां एंजॉय कर रहे हैं. सो दिस इज द सिचुएशन. एंड शी द बिग गर्ल, और जो उनकी मदर है वो बिग गर्ल है, बड़ी लड़की है, लंबी लड़की है, सम 12 years और सो. तो यहाँ पर आपको पता चल गया व्हाट इज द एज ऑफ द मदर. द एज ऑफ द मदर इज 12 years. ओके. एंड देन all three stood still to smile through their hair. और तीनों की तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल हैं और स्माइलिंग कर रही हैं. उनके बाल उड़ रहे हैं हवा में बिकॉज दे आर स्टैंडिंग एट द सी बीच एरिया. एंड यहाँ पर हमारी लिटरेरी डिवाइस आएगी दैट इज एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है एस. तो वी व्हेन वी फाइंड द रिपीटेशन ऑफ द vowels or consonants, so we find alliteration here. And then after it add the uncle. अब यहाँ पर एक फोर्थ पर्सन और है, वो कौन है? वो है अंकल. फोर्थ पर्सन कौन है यहाँ पर? वो है अंकल. और अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल उनकी फोटो ले रहे हैं. Dan with the camera is sweet face. Sweet face क्या को यहाँ पर डिफाइन किया गया है? स्वीट फेस यहाँ पर अगेन वी आर फाइंडिंग द लिटरेरी डिवाइस दैट इज मेटाफर. एंड माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. ये फोटो तब की है शिवलेट टर्सन के लिए. ये फोटो तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की फोटो है. देन आफ्टर इट व्हाट हैपेंड? देन that was before I was born, and the sea which appears to have changeless sea. और चूंकि मेरी मदर और उनकी जो सिस्टर है वो वहां पर एंजॉय कर रही है और उनके पीछे क्या है? किसकी फोटो है? किसकी फोटो है? पिक्चर ऑफ द सी, यानी कि वाटर एवरीवेयर. जहाँ पानी पानी है वहां पर एंजॉय कर रही है, तो पानी की भी पिक्चर वहां पर दिखाई दे रही है. लेकिन जो ये ह्यूमन बीइंग्स है, बिकॉज दीज आर द ह्यूमन बीइंग्स, और इनके अंदर सबसे बड़ी एबिलिटीज होती है कि ये चेंजेबल होते हैं, ये बदल जाते हैं, क्योंकि sometime they are in the form of childhood and now they have become adult or matured, and then after some time we will find they are no more. So the things are going to be fainted, or the things are going to be removed here, but the sea is permanent and sea is perennial over here. So he is defining कि sea कैसा है? वो changeless है. So watched their terrible transient feet. और चूंकि वो किसमें खड़ी हुई हैं? वो खड़ी हुई हैं समुद्र में. समुद्र की लहरें वहां पर आ रही हैं, सी वेव्स वहां पर आ रही हैं, वो उनके पैरों को टच करती हुई जा रही हैं इस तरीके से. तो इट मींस पैर कैसे हैं? उनके फीट कैसे हैं? they are transient. Transient means changeable. कौन changeable है? Human beings. Human beings के पैर, human beings की सब चीजें, these are changeable. But the natural things like sea, mountains, they are not changeable. They are fixed until and unless there is a doomsday. Okay, so now second extract. Some 20-30 years later. अब क्योंकि उस समय वो कितने साल की थी? When the picture was taken, that time she was 12 years. कितने साल की थी? 12 साल की. अब 12 साल बाद, 12 साल की तो तब थी, अब वो 20-30 यानी हम 30 ले लेते हैं. 30 years बाद यानी कि आप टोटल कितना हो गया? 42. तो 42 की एज में अब दोबारा से वो फोटो शिवलेट टॉल्सन की मदर अपनी बेटी शिवलेट टॉल्सन के साथ देख रही है. तो जब उसको देखती हैं तो ऑब्वियसली 42 की एज में उनके पास क्या है? उनकी फैमिली है. तो फैमिली के रूप में उनकी बेटी है शिवलेट टॉल्सन. तो अब वो जब उसे देखती है तो क्या कहती है? she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly. वो हंसती हैं इस फोटो को देखकर, जैसे हम भी अपने पुराने फोटोज को देखकर हंसते हैं. और वो कहती हैं कि देखो, किससे कहती हैं? अपनी बेटी से कहती हैं, अपनी डॉटर से कहती हैं, शिवले से कहती हैं कि देखो ये बेटी, ये डॉली, ये दोनों किस तरीके से मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं. And she said, should say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both re with the labored ease of loss. ठीक है, वो कहते हैं देखो हमने किस तरीके से सी हॉलिडे एंजॉय किया. हम वहां पर एंजॉय करने के लिए गए हुए थे. हम तीनों ने ड्रेसअप किया हुआ है अपने आप को. हमारी मदर्स ने हमें इस तरीके से ड्रेसअप कराया है कि हम सी हॉलिडे को एंजॉय कर सकें. और फिर दोनों ही उस पिक्चर को देखकर, जो पिक्चर यहाँ पर है, ये वाली पिक्चर जो यहाँ पर पेस्टेड है, उसको देखकर वो बहुत जोर से हंस पड़ती है. लेकिन साथ ही साथ उस हंसी में क्या है? उस हंसी में साथ ही साथ उनके लिए एक तरीके का बहुत री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मीनिंग है कि एक तरीके की वहां पर डिजेक्शन भी है, रिजेक्शन भी है. क्यों? क्योंकि बोथ री विद द लेबर्ड ईज लॉस से मीनिंग है चेंज इज द हार्श एंड बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. सो नन कैन होल्ड और कैप्चर time. So with the passage of time everything gets distorted and man is compelled to accept the loss with ease, however harsh or painful it may be for him. He or she has to accept it. Means she is describing about the change of life, because we know it that change is the law of nature and there is a circle of time which is hitting to each and everything, especially those things who the things that has taken or which has
taken birth and there is a circle of time which is hitting it until it is pulverized and mixed into the dust. So that's why this philosophy has been taken and adopted by the poetess over here. So this is the second phase of life, means first phase तो हमारा ये था, this is the teenage, and second phase this is the mature days or the adulthood, and now in the end we will find what happens. So now she been dead nearly as many years. अब मदर क्या है, वो मर चुकी है, ओके, कई साल हो चुके हैं, यानी हमारी जो पोएटेस है अब वो ही मैच्योर डेज में पहुंच गई हैं, एडल्ट हो चुकी हैं. As that girl lived and of his circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence, silence. और अब इस लड़की के पास, किसके पास, कुछ भी कहने के लिए नहीं है. That girl lived, उस लड़की के पास, जो लड़की पहले जिंदा थी, आज उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. केवल परिस्थितियों में चारों तरफ क्या है, नथिंग एल्स एक्सेप्ट साइलेंस, क्योंकि मदर ही जब वहां पर नहीं है तो कुछ कहने के लिए भी नहीं है. इस तरीके से लाइफ ने अपना टोल टैक्स ले लिया, जिंदगी जहां से आई थी वहीं जाकर वापस पहुंच गई. एंड बेसिकली वी ऑल पीपल आर हियर टू डू आवर बेस्ट. सो डेफिनेटली इफ वी आर हियर वी मस्ट ऑलवेज डू आवर good things, always in the favor of humanity, and that has been given, that philosophical idea and ideology over here by the poetess, that this life is very beautiful, it is worthful living, so always make it beautiful as it has been said and conveyed in this poem Photograph. So thank you everyone, and definitely once again I would like to tell you, so be careful today's टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है कोविड-19 का है, सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें. बस इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ में आई एम एंडिंग दिस पोएम. सो बाय बाय एवरीवन.